So finally, thank you so much for inviting me. See what is happening in India, and since last 75 years, it's very difficult to talk about within 10, 20, 50 minutes or 1 hour. So tribal displacement, when I talk about displacement or development is now it becomes a terror for tribal community. I can say it's this development means genocide for tribal community. In the name of development induced displacement, and more than 8 crore people, more than no data, no figure, no proper research, no authentic figure given by government of India or any government of Himachal Pradesh, government of Jharkhand, government of Odisha, government of Chhattisgarh, government of Madhya Pradesh, no official data. And thank to all researcher, independent researcher, journalist, independent activist, researcher, they have done on their own, they have done a very good study and they have presented data on displacement. How many tribal people really displaced? And out of total displaced person, how many women, children? So thank to all these, and government they denied, basically they denied, they said कि no इतना displacement नहीं है. So fortunately in our state there are so many tribal movements against displacement, and there are two big movements still going on, and we got succeeded because of we lost so many lives. Police firing in Koel Karo Jal Hydel Power Project movement. It was 2001 when police firing occurred and 8 people were killed. Out of 8, 7 were tribals. One was Muslim local Jamal Khan. Another movement is pilot project Netarhat Field Firing Range, which was begun in 1993. And it's going on. 30 years, more than 30 years has been passed. So more than 245, earlier they said कि 245 गांव में मिलिट्री का permanent cantonment बनेगा. Now they are saying कि 295 villages will be uprooted. So this is happening with tribal people, and after this PM, our honorable Prime Minister Narendra Modi, he become Prime Minister, but no and so assurance to stop displacement, migration, trafficking, anything regarding tribal issues. Though they have placed a tribal women as a President of India, that's fine. We welcome and we are little happy, not very happy. But what is happening after becoming a tribal woman President of India? What is happening? She is making sign, and she is giving blank, putting red carpet to Adani, Ambani, Jindal, Mittal, Alloy Steels, and they have opened these all places, this Hasdeo Jungle, this Surja Pahadi in Maharashtra, Gadchiroli. In our state, 9 coal blocks they have allotted to Adani. And before that, in our state, Godda, there were green paddy fields was there, and this 3-ton Shaktiman, like a big vehicles, it came and it was पूरा रौंद के सारे फसल्स, सारे धान के खेत सब खत्म किया. सो ये जो पूरी पिक्चर है, दिस इज़ एन ओवरव्यू कि पूरे भारत में ट्राइबल्स के साथ क्या हो रहा है. नीड टू अंडरस्टैंड देयर पॉलिटिक्स ना. दैट्स गुड कि ट्राइबल एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए हैं. वी आर हैप्पी, नॉट मच हैप्पी. लेकिन व्हाट इज़ हैपनिंग विद ट्राइबल पीपल? आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्राइबल को बनाया, देन व्हाट इज़ हैपनिंग विद हसदेव? व्हाट इज़ हैपनिंग इन सुरजा पहाड़ी? व्हाट इज़ हैपनिंग विदाउट एनी केस, without any charge sheet, and without any sections? So many, it's very difficult. Chief Minister of Jharkhand state, Hemant Soren, now he is in jail, and what's his crime? This ED, Enforcement Directorate, these officers, Government of India,
Home Minister, Mr. Amit Shah, they are not able to tell about. Just we are asking, we had a very big rally, Adivasi Ekta rally on 4th February in Ranchi Morabadi Maidan. We all tribal people, we are asking, ki please tell what's his crime. He is a very popular chief minister. He got 30 MLA in 2019 election. And what he did actually, he was doing for tribal people. He was saving forest, he was saving land. And you have sent jail to this chief minister because of 8 acre 46 decimal land. And in Ranchi, more than 25 lakhs acre land grabbed by this outsider people. This outsider from any states, like Bihar, like Rajasthan, like Punjab, and other people, UP. People are coming, they want to establish there. They can come, they can do their business. But they are violating Chota Nagpur Tenancy Act, they are violating Santhal Pagna Tenancy Act, they are violating Wilkinson Rule, and they are grabbing our tribal land, our forest, and they are not getting jail. But our chief minister, he got jail. What is happening? What is happening? In India, there is very difficult. It's a democracy is in dangerous. Tribal people, their custom, culture, community, all are in threat. And we are feeling very strongly, we are feeling threat with this government. As a speaker, this moderator, he said ki we are not Hindu, we are tribal, we are Adivasi, we are not Janjati, we are not Vanvasi, we are not Sanatani. Now there Mohan Bhagwat is saying ki Sarna Sanatan ek hai. In eastern part of India, if you are following very closely, there is a very strong movement going on in Chhattisgarh, in Jharkhand, particularly in Madhya Pradesh also. Sarna Adivasi Dharam Code. Why they are not giving Adivasi Dharam Code? And they are talking about delisting. To whom you want to delist? You are already delisted. You have come here in India since last 4,000, 5,000 years. Tribal people, they are residing more than 1 lakh years. And now you are saying कि इंडिया हमारा है, हमारा 1528 में राम मंदिर बना दिया, हमारा बाबरी मस्जिद जो मंदिर को गिरा के बाबरी मस्जिद बना दिया. So why you people are, आप कैसे बोल सकते कि इंडिया हमारा आपका है? How you people are saying कि आपने ये कैसे जबरदस्ती दावेदारी की है? And what about tribal people? उनकी जो हिस्ट्री है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो फ्रिटिस स्टाल ने लिखा है, डिस्कवरिंग द वेदास, वी नीड टू सी ऑल दीज बुक्स, उसमें लिखा है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें मोर देन 5 lakhs पॉपुलेशन हुआ करते थे, वो जो नगर सभ्यता थी. आउट ऑफ 5 lakhs 2,50,000 जो थे वो द्रविडियन एंड प्रोटोमुंडा. देर इज ए वर्ड प्रोटोमुंडा. प्रोटोमुंडा ये वर्ड उसमें है कि प्रोटोमुंडा वहाँ रहते थे. एंड प्रोटोमुंडा, सो दे फाइनली दे बिकम पार्ट ऑफ इंडिया. एंड दीज पीपल, दिस सनातनी पीपल, दे आर सेइंग कि वी आर ओरिजिनल. आप आर्य हो, जो अनार्य लोग थे उनके राइट्स आप कैसे छीन रहे? आप उनको राक्षस बोलते, उनको पोर्ट्रेट गलत करते हो, आप उनके बारे में बहुत गलत तरीके के इमेज पेश करते. एंड दे आर सेइंग कि ट्राइबल तो हमारे सारे कस्टम कल्चर फॉलो करते हैं. नॉट एट ऑल. आप हमारे कल्चर कस्टम फॉलो करते हो. जो हमारे सिंदूर की प्रथा है, सिंदूर की प्रथा कहाँ से आई है? इट्स नॉट ए आर्यन कल्चर. ये हमारा कल्चर है. हम बलि देते हैं और हम पशुओं की बलि देते हैं, हम पूजा करते हैं अपने एंसेस्टर्स की. एंड दे सेड कि हीराकुंड डैम में कितने लोग विस्थापित हुए? दे सेड कि 1,10,000 पीपल ओनली वेर डिस्प्लेस्ड. It's a government data, very conservative data. When independent researcher, they have started doing and they did research, they are saying ki no, because of Hirakund Dam, more than 1,80,000 families, they got displaced. People, they displaced. Same in Dumberbag, Tripura.
they said ki 2361 family they got displaced, but independent researcher they are saying ki no, there are 9000 family they got displaced. Paglagia Dam, Assam, 3271 family they got displaced, but independent researcher they are saying ki no, 20,000 families they got displaced. So it's a huge difference between government data and non-governmental data. In the name of development, you are doing all these things, but you don't have resettlement and rehabilitation plan. So what happened with this 2013 law? The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, it was introduced when UPA 2 government was there, and it was implemented 1st January 2014. And section 24(2) is very, very important. And I think all students, those are working on tribal agenda, they must go through why these Narendra Modi and Amit Shah Home Minister, they are afraid with 24(2) sections of 2013 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation, Resettlement Act. Because it says, this section, it says that if you have acquired land, tribal land, in as per 1894 Land Acquisition Act section 11, and after commencement of this act, 2013 act, if any factory, any company, any plant, if they don't have their physical possession, then this acquisition shall be deemed to have lapse. So they have removed this. Because of these sections, lakhs of tribal people, they get back their land. Like in Chhattisgarh, Congress government returned back 5,000 acres of land which was taken by Tata company, and later on they get back to Rayat, these farmers. Like that, all tribal people in across tribal India, wherever they can get back land as per 24(2). But why these Narendra Modi and Amit Shah, they have changed, they have stopped. They ordered 3 judges bench of Supreme Court, they sit and they ordered all high court of every states. They ordered that not to deal with 24(2), not to deal with 24(2). Why? You don't want to get back land to tribal people, because you don't want to empower tribal people. Just you are posing and presenting Mukhota as a this president of India, as it you gave this post to tribal, but in real sense you don't want to give empower and right to this tribal people. They don't want to talk about this 5 principles of 5 principles which was introduced by Pandit Nehru and given by this Warrior Alvin. Do not impose any big projects, big dams or mega projects into tribal region, 5th schedule or 6th schedule area. But why in this 75 years has been passed, but these 5 principles, this 5th schedule, this 6th schedule, it's not being implemented. Why this is happening? क्यों implemented नहीं हो रहा है? हमें सवाल का जवाब दीजिए. Constitution में, Indian Constitution में there are more than 23 articles to uplift tribal and other backward and economically or educationally, socially weak community. There are more than 23 articles, but why these are not being implemented? क्यों implemented नहीं है? So आप हमें इस बात का जवाब दें, then मैं समझूंगी कि आप वास्तव में ट्राइबल का एम्पावरमेंट करना चाहते हैं और आप ट्राइबल को लैंड देना चाहते हैं, ट्राइबल को फॉरेस्ट देना चाहते हैं. As per this Forest Conservation Amendment Act 2013, which was notified on August 4th, 2023, what it says, ये बोलता है कि देखो हमें तो डिफेंस के लिए 10 हेक्टेयर्स लैंड चाहिए. तो 10 हेक्टेयर्स लैंड दे वांट एनी फॉरेस्ट ना, एनी फॉरेस्ट दे कैन गो एंड दे सेड कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, यहाँ अडानी का प्लांट लगाना है, 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हम लेंगे.
एंड 5 hectares ऑफ लैंड फॉर paramilitary फोर्सेस को हम इस्टेब्लिश करते हैं in section 4. You please go through this Forest Conservation Amendment Act. Section 4 is very dangerous. And very beginning they were talking about very goody thing ना, कि ओ भारत में तो जंगलों को बचाने की बहुत परंपरा है, जंगलों को आदिवासी बचाते हैं क्योंकि उस पर वो निर्भर हैं, उस पर वो जीते हैं, जंगलों से बड़े प्रेम करते हैं. All these goody things in beginning of section 1, 2, and when we go through this section 4, it's very dangerous. इतनी खतरनाक प्रावधान ला रहे हैं और ये हमें कहते कुछ है, करते कुछ हैं. तो इनकी करनी में, इनकी कथनी में बड़ा फ़र्क है और ये इस नज़रिए से दे आर वेरी डेंजरस, हमारे लिए बहुत ख़तरनाक लोग हैं क्योंकि आदिवासी बहुत सीधे हैं. दे आर क्वाइट सिंपल, दे आर क्वाइट इनोसेंट. आप उनको झूठ बोलते हैं, आप उनको ठगते हो और आप कहते हो कि हम बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं. जो झूठ बोलता है, देश को बेचता है, जो देश को लूटता है, आर दे सिविलाइज्ड? वो लोग सिविलाइज्ड लोग हैं क्या? जो हमें जंगलों से बेदखल कर रहे हैं, हमारी ज़मीन छील रहे हैं, हमारे ट्राइबल पॉपुलर चीफ मिनिस्टर को जेल भेज रहे हो एक 8 एकड़ के लैंड के लिए, और तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा कार्यालय रांची में बना, सारे मुंडारी खुटकटी लैंड लूट के बना लिए हो, उसके लिए तुम सजा नहीं दे रहे हो किसी को. भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को डिमोलिश करो ना रांची में जो हरमू में है, और आप हमारे ट्राइबल चीफ मिनिस्टर को जेल भेज रहे हो इसलिए ना क्योंकि उन्होंने तुम्हारी शर्तें नहीं मानी कि तुम बोलो अपने को हिंदू हो और भारतीय जनता पार्टी के साथ तुम गवर्नमेंट बनाना चाहते हो. तो ये जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स को समझने की ज़रूरत है. ये पॉलिटिक्स किसके लिए ठीक नहीं है? ये पॉलिटिक्स हमारे लिए ठीक नहीं है, किसी भी नागरिक, किसी भी सिविल सोसाइटी के लिए ठीक नहीं, किसी इस देश के लिए सही नहीं, और आदिवासियों के लिए तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो हमारी कुछ सुनना नहीं चाहते, हमारी कुछ बातें नहीं करना चाहते, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारे राइट्स की कोई बात ही नहीं करना चाहते. जो हमारे लैंड एंड फॉरेस्ट रिलेटेड जो हमारी राइट्स हैं, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट कि वो हमें उसकी राइट्स दे दे. CNT एक्ट को व्हेन दिस BJP गवर्नमेंट वाज देयर इन झारखंड in 2016, there were hue and cry because then Chief Minister was Raghuvar Das, BJP government was there. They want to change the CNT Act, SPT Act, Wilkinson Rule. अरे बिरसा को पूछते हो, बिरसा को श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, और इधर लूटांजलि. इधर बिरसा को श्रद्धांजलि देते हो और इधर आदिवासियों की ज़मीन लूटते हो. तो ये कैरेक्टर इस देश में कैसे आ गया? ये तो नहीं चल सकता. आदिवासी बिरसा ने कहा कि उलगुलान का अंत नहीं हुआ और हम अपने हथियार छोड़कर जा रहे हैं, और वो हथियार आज आदिवासियों ने उठाए. उनको जस्टिस नहीं मिल रहा तो वो नक्सली बन रहे हैं. और जिस तरीके का व्यवहार मणिपुर में क्या है, मणिपुर से अभी वो उन्नाव ट्राइबल फोरम से जारजोकिम चली गई. दे हैव अनदर प्रोग्राम. मणिपुर में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, दे आर सेइंग कि खाली करो. राम माधव उधर बैठे हैं, RSS के बड़े थिंक टैंक, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उनके जंगल से, उनके हैबिटेट से आप उनको हटा रहे हो. वहाँ के कोकीजोमी मार मीजो ने रेसिस्ट करा, और रेसिस्ट करा, धीरे धीरे सुलगते सुलगते आग इस तरीके से ब्रस्ट करा. अभी मणिपुर हाईकोर्ट ने वापस ले लिया कि मतई ट्राइबल्स नहीं है. तो आप लैंड लूट के लिए, आप फॉरेस्ट लूट के लिए, आप रिसोर्स की लूट के लिए औरतों के शरीर को टारगेट कर रहे हो, वायलेंस अगेंस्ट इंडिजिनस वीमेन. तो ये लैंड के कारण, आप लैंड लेना है अडानी को, अंबानी को, तो आप औरतों के साथ गैंगरेप करोगे. कितनी गैंगरेप की इंसिडेंट हुई. हसदेव में क्या हो रहा है? हसदेव में जो ट्राइबल वीमेन है, दे आर वीपिंग. जो वाइट बियर के एक फ़ोटोज़ हमने चलाए थे, वहाँ के लोगों ने भेजा था, सारे जीव जंतु, बायोडाइवर्सिटी, इट्स गोइंग टू बी डिस्टिंक्ट, ख़त्म हो रहे हैं. और आप 1,70,000 एकड़ की फॉरेस्ट को आप ख़त्म कर रहे हो. आप ग्लोबल वार्मिंग की बातें करते हो, आप कॉप जाते हो, COP 28 में UN के क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज में जाते हो बातें करने के लिए. सो ये ड्यूअल कैरेक्टर क्यों? धरती गर्म हो रही है बिकॉज ऑफ योर पॉलिसी.
अगर आप आदिवासी को मारोगे, आदिवासी से उनके अधिकार छीनोगे, आदिवासी के उनके रिलीजन जो आदिवासी धर्म कोड है आप उसको नहीं दोगे, आप डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी प्लांट कहीं भी लगाओगे, तो आप सोचते हो कि ये प्लैनेट एंड पीपल ये सारे लोग बच जाएंगे? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। पूरे देश में और पूरे यूनाइटेड नेशंस ने मान लिया है कि वी नीड टू सेव ट्राइबल पीपल, देयर नॉलेज इन दिस सिस्टम ऑफ नॉलेज, देयर कस्टम, देयर कल्चर, देयर फूड सिस्टम, देयर लिविंग स्टाइल, दे नो हाउ टू सेव forest, they know how to say grow this tree, they know how to save tiger, their lion, elephant, सब कुछ। ट्राइबल ही एक ऐसा इंसान है इस धरती में जो सारे खतरनाक जानवरों के साथ रहता है, बाघों के साथ रहता है, शेरों के साथ रहता है। नरेंद्र मोदी शेर के साथ रह लेगा क्या? अमित शाह शेर के साथ रह लेगा क्या? इतनी औकात है तो चले वो जंगल हमारे साथ, हम तो रह लेंगे, लेकिन वो तो नहीं रह सकता। तो ये शेर यहाँ पे बन रहे हैं कागज़ में हमें उलटफेर करने के लिए, लेकिन जंगल के शेर के पास जाएं तो औकात पता चल जाए इनको। तो आप ये जो पूरे साइकिल हैं आप इकोलॉजी के, पूरे एनवायरनमेंट के जो इको सिस्टम्स है हमारे, सो यू आर क्वाइट डिस्टर्बिंग ना, ये आप ख़त्म कर रहे हो और आप कह रहे हो कि हम ट्राइबल को इतने राइट्स दे रहे हैं। पीबीटीजी को हम प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट मिशन हम बनाया, 15,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। पीवीटीजी को तो आज़ादी के बाद से पैसे जा रहे हैं। जो पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, देयर आर 75 ट्राइबल ग्रुप्स आर देयर इन इंडिया। पीवीटीजी हमारे स्टेट में 8 हैं, और आप उनके डेवलपमेंट, उनके एजुकेशन के लिए क्या किया आपने? सो डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट, सो इट इम्पैक्ट्स ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ट्राइबल का सब कुछ ख़त्म कर दिया। नाउ सी, अगर आप ट्राइबल एजुकेशन की बात करें, सो देर आर ओनली 45 और 43% ट्राइबल वीमेन, दे आर लिटरेट, और यू कैन से एजुकेट, एजुकेशन मैं नहीं बोल सकती, आई थिंक इट्स लिटरेट। सो वो लिटरेट हैं, दे आर नॉट एजुकेटेड। सो आपने ट्राइबल एरिया में 10 सालों में कितने स्कूल खोले हैं और कितने आदिवासी बच्चों को आपने स्कूल भेजा है? देर आर हाईली ड्रॉप आउट। 2020 में आपने लॉकडाउन कर दिया। आप एक बीमारी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप आदिवासियों से नहीं पूछे कि भाई तुम लोग मरे नहीं कोरोना में, और आपने पूरे हिंदुस्तान के 6 लाख 10 लाख लोगों को मार दिया, तो आदिवासी जिंदा कैसे बचा? When it was कोरोना बहुत सारे लोग मरे, कौन नहीं मरा? आदिवासी नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? क्योंकि उनके जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, ट्रेडिशनल फूड सिस्टम है, उनके मेडिसिन्स के, उनके न्यूट्रिशन के खाने के जो हैं, वो उन लोगों ने बचाए रखा, उसको लिया, उसको खाया, वो नहीं मरे। 1% अर्जुन मुंडा, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, पार्लियामेंट में बोला कि ओनली 1% ट्राइबल वहाँ मरा है कोरोना से। 2000 फ्लाइंग, 2002 सो कॉल्ड मेन स्ट्रीमिंग में जो लोग आ गए हैं वो लोग इसके शिकार हुए। बट ट्राइबल विलेजेस, इट वॉज नो, देर वेर नो इम्पैक्ट इन ट्राइबल विलेजेस। कोरोना का कोई इम्पैक्ट वहाँ पे नहीं पड़ा। सो डेवलपमेंट ने इतनी सारी चीज़ें हमें, हमारी कमर तोड़े, हमारे लैंग्वेज, कस्टम, कल्चर ख़त्म किए, बट अभी भी हम अपने को बचा कर रखे हैं कि हम वायरस कोई भी अटैक करे, ट्राइबल नहीं मरने वाला। बट आप ट्राइबल के नॉलेज प्रमोशन के लिए क्या कर रहे हैं? मोदी ने अहमदाबाद में वर्ल्ड सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन खोला है, और हम उनको कह रहे हैं कि हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एथनो मेडिसिन, होम्योपैथी को आप इस्टेब्लिश करो। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। दे आर सेंडिंग ओनली ए लेटर टू मी कि हाँ, एथनो मेडिसिन इज़ ए ट्राइबल नॉलेज, and there are 5,000, 10,000 tribal practitioners across tribal India, but it will take more time. हमारे साइंटिस्ट का ग्रुप है, वो देखेगा। तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्रोमोट, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर नॉलेज। यू डोंट वांट टू प्रोमोट ट्राइबल प्रैक्टिशनर्स, एंड आप वहाँ पे वर्ल्ड सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन खोला है फॉर व्हाट? आप इन चीज़ों को देखिए, उनके काम करने के तरीके देखिए, व्हाट दे आर एक्चुअली सेइंग एंड व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग। उनके करनी और कथनी, उनके कैरेक्टर में कितना फ़र्क है। तो आप, मैं ये कहना चाहती हूँ, देर आर सो मेनी थिंग्स। अगर डेवलपमेंट को फोकस करके बात करें, हाफ ऑफ पॉपुलेशन आर वीमेन। वीमेन की क्या कंडीशंस है हमारे स्टेट से? पर्टिकुलर फ्रॉम झारखंड ओनली, देर आर अबाउट मोर देन 3 lakhs ट्राइबल women, young girls. They are in Delhi as a domestic help. अगर रियल सेंस में आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट, नाउ 24 years has been passed, लेकिन नो पॉलिसी, नो प्रोग्राम, नो
प्लान। सो आप इस तरीके का हमारे स्टेट में आप अडानी को दे रहे हैं कोयला लोहा, आप उनको डिगिंग करने की राइट्स, आप प्लांट दे रहे हो, जंगल दे रहे हो, हमारी लड़कियां दिल्ली में आ रही हैं डोमेस्टिक वर्क। इज इट नेशन बिल्डिंग? ये क्या नेशन बिल्डिंग है क्या? इन रांची वे इट्स ए कैपिटल ऑफ झारखंड स्टेट, 1958 में इट वॉज एस्टैब्लिश हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन। इसको बोलते हैं मदर इंडस्ट्री, एंड इट हैज़ टू establish so many steel factory in India because HEC was mother industry। और लेकिन आज HEC में 22,000 वर्कर्स थे इन 1958-67 तक से, और अभी कितने हैं? अभी 500 ऑफिसर्स फर्स्ट क्लास, 500 कुछ एम्प्लॉयज़ एंड 1,625 कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स में वेरी फ्यू आर डिस्प्लेस्ड एंड ट्राइबल पीपल। तो हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को आप रिवाइव नहीं करना चाहते, आप मॉडर्नाइज नहीं करना चाहते। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप अडानी को बोलो कि कम से कम 1200 करोड़ दे दे, हमें रनिंग कैपिटल दे दे कि हम हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को हम रन करें। एंड बिकॉज ऑफ हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन 32 विलेजेस वेर अपरूटेड, ऑल उराव मुंडा and local tribal people, they were uprooted, and one village is a Latma village, and now you can go any time, please come to Jharkhand and visit to Latma village। Latma village में आज every people they are dying from tuberculosis, TB से मर रहे हैं, TB की बीमारी से। is it nation building? आपने पूरे 32 विलेजेस को उजाड़ दिया, आपने फैक्ट्री लगाई, आपने किनको नौकरी दी? बाहर के लोगों को दिया। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज आर इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेस पीपल जिनकी ज़मीन आपने ली, जो कितनी पुश्तों तक खाते हैं, पूरे खानदान धान उपजाता है और पूरा परिवार का पेट भरता है। आपने परिवार के एक को नौकरी दिया और बाकी बेटे क्या कर रहे हैं? अनएम्प्लॉयड, नो लैंड, वो भुखमरी और बेकारी और गरीबी की स्थिति आ गई उनके बीच, एंड नाउ दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। आप लटमा गांव में जाएं तो लटमा, हमने कविता भी लिखी है लटमा में, अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट ब्रिंग दिस। और लटमा गांव में महिलाएं आज भी सुबह निकलती हैं 9 बजे पूरे झोले टांग के, एंड एट इवनिंग टाइम 5 o'clock 6 o'clock दे कैम बैक टू देयर नेस्ट। वो वहाँ आते हैं, वहाँ रहते हैं, और उनके लिए कोई लाइवलीहुड के सपोर्ट नहीं है, कोई एजुकेशन की व्यवस्था नहीं, नो हॉस्पिटल इवन। एंड टाइम टू टाइम नाउ दिस एम्प्लॉय ऑफ हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन दे आर फाइटिंग, दे आर स्ट्रगलिंग कि हमें 20 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि मोदी ने चंद्रयान में प्रक्षेपण किया ना, वो चंद्रमा में चले गए जो लोग, उनके पार्ट्स पुर्जे हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने बनाए थे। लेकिन पीयूष गोयल ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के लोगों ने चंद्रयान जो उसमें सैटेलाइट में जो गया, उसके पार्ट्स पुर्जे जो है सैटेलाइट के लिए वो HEC में बने। लेकिन जब उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए, वर्क ऑर्डर्स आए थे HEC में, जब पीयूष गोयल को पार्लियामेंट में ये हमारे लोकल MPs लोगों ने ये जब दिया, तब जाके पीयूष गोयल ने माना कि हाँ, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के लोगों ने चंद्रयान में, चंद्रमा में पहुंचने के लिए सैटेलाइट्स के कल पुर्जे बनाए थे। तब जाकर उन्होंने 2 महीने 2.5 महीने के वेतन के पैसे रिलीज़ किए कर्मचारियों के। तो आप देखिए कि हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, इट वाज सो पॉपुलिस्ट इन एशिया, इट वाज ए फर्स्ट हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इन एशिया। अभी देखिए उसकी क्या हालत हो गई। अभी उसको मॉडर्नाइज करने के लिए दे डोंट हैव मनी। विजय माल्या को भेज देने के लिए उनके 20,000 40,000 करोड़ माफ़ कर दिए, कितने उद्योगपतियों के कर्ज माफ़ कर दिए, किसानों के कर्ज माफ़ नहीं करेंगे आप। और आप HEC के कर्मियों के वेतन देने के लिए आपके पास पैसे नहीं, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को चलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आप 1200 करोड़ रुपए और बैंक गारंटी देने के लिए आपके पास सिस्टम नहीं है। सो हाउ दे आर रनिंग ना। आप विकसित भारत किसको कह रहे हैं? विकसित भारत आप 2047 में कह रहे हैं, तो रांची के हर्ट में जो हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन है, व्हाट अबाउट हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन? आप उनको
मॉडर्नाइज करना और नए लोगों को नौकरी देना, आप उनको एम्प्लॉयमेंट देना। तो डिस्प्लेसमेंट के इतने बड़े बड़े चेहरे, डिस्प्लेसमेंट बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी ने इंडिया में, एंड देयर आर मेनी पीपल ना, आउट ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट 8 to 10 करोड़ का फिगर है, and 80% belong to tribal community, SC and Muslims and OBC they are also displaced। तो ये 20% में बाकी लोग आते हैं। तो ये इनके रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन के लिए जो 2013 में के लॉ में प्रोविज़न है, सो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट। तो आप क्या बातें करना चाहते ये आप देख लीजिए कि इनके पास किस तरह की प्लानिंग है आदिवासियों के ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। आप ट्राइबल के बिजनेस की बात करिए, ट्राइबल्स को बिजनेस में लाना है तो आप उनके हैंड होल्डिंग के लिए आपने क्या करा? MSME में क्या एक सिंगल विंडो के कोई सिस्टम है जिसमें ट्राइबल ईजी वे में बिजनेस कर सके? नो, नॉट एट ऑल। तो ये जो सीन है पूरा अभी भी भारत में, मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, उन्होंने 5 मिनट्स और बोला है, लेकिन आई डोंट वांट टू गो 5 मिनट्स में, नहीं, मैं पहले ख़त्म कर देना चाहती हूँ। देखिए, आई वांट टू डिबेट ऑन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इट्स ए लाइक ए जीनोसाइड। आपको यहाँ से उखाड़ के हम वहाँ फेंक दें, वहाँ पानी नहीं, बिजली नहीं, अस्पताल नहीं, एजुकेशन नहीं, तो आप धीमी मौत मर रहे हो ना। एक ऐसी मौत मर रहे हो जहाँ पे कोई ब्लड बाथ नहीं है, लेकिन आप अभाव में, आप कमियों से जूझ के जीवन की ज़रूरतें नहीं पूरी हों तो आप मरेंगे नहीं तो क्या होगा? और यही हुआ पिछले 60-70 सालों में कि उनको अभाव में इतना डाल दिया गया डिस्प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम पर कि आदिवासी धीमी धीमी मौत मर रहा है, और एक ऐसी मौत जिसमें खून बहता नज़र नहीं आ रहा। तो हम इसलिए डेवलपमेंट को जीनोसाइड कहते हैं। और मैं अपनी बात इस बात को लेकर ही ख़त्म करना चाहती हूँ कि हमारे झारखंड मीन्स लैंड ऑफ फॉरेस्ट, मीन्स लैंड ऑफ माइंस एंड मिनरल्स। हमारे कोख में अमीरी एंड गोद में गरीबी है। इतने तरह के 49 तरह के माइंस मिनरल्स हैं, लेकिन हमारे ट्राइबल्स कोई भी माइंस मिनरल्स की कंपनी बना के उसको ओन करना, 5th शेड्यूल एरिया में वो चलाना, आपने ये काम नहीं किया। आंध्र प्रदेश में ट्राइबल कोऑपरेटिव्स हैं माइनिंग के, और ट्राइबल को माइनिंग के राइट्स हैं, आप हमारे यहाँ नहीं दे सकते। आप अडानी अंबानी को ही माइनिंग की राइट्स क्यों दे रहे हैं? 5th शेड्यूल एरिया में अडानी कैसे आ सकता? तो वी नीड टू डिस्कस ऑन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब अडानी और अंबानी और अमित शाह के बेटे जय शाह के खाते में 5,000 करोड़ से लेके 80,000 करोड़ का होना नहीं है। हमारे सुमरा भगत मुंगरा और कुंदरसी मुंडा के भी अकाउंट में 1 लाख करोड़ और 80,000 करोड़ आने चाहिए। ये तभी संभव है जब आप उनकी कंपनी बनाएंगे, उनको ऑनरशिप राइट देंगे आपके माइंस एंड मिनरल्स पे। इसलिए वी नीड डिबेट, ग्रेट डिबेट ऑन डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट पे बहस की ज़रूरत है। आप जो यहाँ के यूथ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप एक मॉडल खड़ा कर सकते हैं। विवेक देबोराय नहीं कर सकता, वो AC में बैठा है और उसको पता नहीं आदिवासी कौन होता है। तो अगर डेवलपमेंट के प्लानिंग और डेवलपमेंट के न्यू मॉडल्स 75 सालों के बाद भी अगर नहीं बना तो ये भारत नहीं बचेगा, ये प्लैनेट नहीं बचेगा, यहाँ के लोग नहीं बचेंगे, और आदिवासियों पे हमला होगा तो कोई नहीं बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने बुलाया, बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।